हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम में सोमवार के दिन हम चर्चा करते हैं भारतीय राजनीति की। और भारतीय राजनीति की तरफ देखते हुए आपको सुनाई देते हैं ऐसे वक्तव्य जो लगते हैं तीर की तरह, कभी कमान की तरह, और कभी उनमें इस तरह की गंध आती है कि हमें लगता है भारतीय राजनीति के आकाश पर ये क्या बादल मंडरा रहे हैं, क्या ये सचमुच किसी दिशा की तरफ राष्ट्र को ले जा सकते हैं। इन बातों को सुनते, इन पर विचार करते, क्या किसी स्तर पर हमारा उत्थान हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? इज इट साइन ऑफ डेस्परेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक श्योर दैट द लास्ट एरो वुड नॉट रिमेन अनयूज्ड? क्या क्या बातें ला सकते हैं? कौन कौन से तीर तरकश से बाहर आकर जनता तक पहुंचकर बदल सकते हैं दिशा मतदाताओं के मन की? ये सब उठापटक जिसमें कहीं कोई क्रिएटिवली मोदी का एब्रिवेशन का फुल फॉर्म ये करता है कि मॉडल ऑफ डिवाइडेड इंडिया। ये अल्फाज हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के। तो कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक लिखता है मैजिक ऑफ डिवाइन इंटेलिजेंस। आखिर है क्या मोदी? आखिर हो क्या रहा है भारतीय राजनीति में? सोमवार के दिन इनसाइट टुनाइट में चर्चा करने के लिए तीनों राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी हमारे साथ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद the gentleman who is volunteering with Aam Aadmi Party. I have the pleasure of welcoming and introducing Chintan. Chintan, welcome. Thank you very much. And then I have a very senior member of Bharatiya Janata Party, Dr. Rajesh Shukla. He is the committee member of the Central Committee for Overseas Friends of Bharatiya Janata Party, and he is also the chair for Canada and Caribbean of Bharatiya Janata Party. So we are very thankful for you for your presence, sir. And then I have a good friend now in this show with his very vibrant appearances, Junaid Qazi ji. He is executive member of INOC based in New Jersey. And then we see behind him Rahul Gandhi, who because of our technical reasons would see behind VS Mani also, though he is not formally a part of Congress, Bharatiya Janata Party or Aam Aadmi Party, but he is a software engineer, and as many of you, he is also keenly observing ho kya raha hai Bharat mein. So welcome Mani. Your presence would help us in making sense of overall situation, and I just want to open the floor by requesting Chintan, what do you see in India? Let us talk from the point of view of your party. Do you see there is a kind of desperation in Aam Aadmi Party when they are making statements which are causing controversy, or there is a sense of determination? How do you feel the present scenario? I think you use the right word. Determination is the perfect word. Because people, who are leading this party, who are joining day by day, in thousands and thousands, they are not desperate. They are looking for a fresh change. They are looking for an alternate. They are not looking for substitute. Chehra nahi badalna hai. We don't want to change the face or the party. We want to change the system. That is the whole call, and that is the whole idea behind forming this party, joining this party, running this party, and fighting for national elections. So the basic idea is to, in fact, जो एक political establishment में desperation आ गया है उसको दूर करने के लिए, I think before people get really desperate, we need to make this change. We need to change the system and bring. Chintan, I appreciate your viewpoints, and that is the way you see, and that's why probably you're part of Aam Aadmi Party. But there are many members of Aam Aadmi Party who have recently sort of found a door out of Aam Aadmi Party, and now when they are talking about the contribution of Ford Foundation, and they are talking about the change in the intent of the leaders. So before we go to other parties, just let's have a quick brush on Aam Aadmi Party, starting with you, Rajesh ji. Desperation or determination in the leaders of Aam Aadmi Party? How do you view? आम आदमी पार्टी में डिस्परेशन है क्योंकि इनको उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। 16 मई के बाद आप रिजल्ट देखेंगे उसके।
इनकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी तो ये डिस्परेशन है। और केजरीवाल और उनके जो भी सहयोगी हैं किसी तरीके से उनको कुछ ऐसा करना, प्रेस में रहें, उनके बारे में चर्चा होती रहे मीडिया में, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उनको यहाँ तक लाने में। तो उनकी तरफ से डिस्परेशन है, इसलिए कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ आरोप भी लगाएंगे, फिर आरोप लगा के भाग जाएंगे, उसको आरोप का कुछ फॉलोअप नहीं करेंगे। ये सब उनका है। और उनको ये लगता है कि जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में कैसे हुआ वो अलग विषय है। तो डिस्परेशन है उनका। तो डेस्परेशन है, ऐसा राजेश जी ने कहा। उन्होंने कोई ऐसा सब्सटेंशियल रेफरेंस पॉइंट हमारे सामने नहीं दिया, मगर हो सकता है जुनैद जी ऐसे कोई रेफरेंस के साथ बताएं कि डेस्परेशन है डिटर्मिनेशन। आम आदमी को अभी साइड में रखे रहना, आम आदमी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा है इंडिया की राजनीति में। कोशिश है, उनका डिटर्मिनेशन था पहले कि कंट्री के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाया। केजरीवाल जी 49 डेज़ की सरकार चलाई, छोड़ के चल दिए। फिर अब डिटर्मिनेशन हुआ कि साहब अब लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जाके हारने वाले हैं। तो ये इसमें डेस्परेशन और डिटर्मिनेशन का एक मिक्सअप है, वो किसी पोजीशन में नहीं पहुंच पाया। लेकिन डेस्परेशन मुझको दिखता है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी के हम फिर से आएंगे जब राजेश जी से बातचीत की शुरुआत करेंगे, बट लेट मी गो टू मणि। मणि, रिसेंटली देयर हैव बीन सम कमेंट्स बाय मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी, इंक्लूडिंग them saying that Arvind Kejriwal in one of his interviews said that the main focus of the whole election is in Varanasi and Amethi. So everybody should come and collectively they should apply their force here. And what they seem to be suggesting is that they are there to defeat certain candidates. That includes Narendra Modi as well as Rahul Gandhi. And recently also one senior leader said that though both are, and I don't use those kind of adjectives right now. So now how do you see the way it is playing out for Aam Aadmi Party at this moment? I think the Aam Aadmi Party really is coming into this election sort of as a disruptive force in Indian politics. So from that standpoint, you can argue that there's a little bit of desperation in their comments, but I really view it more as disruptive. I'll use another T that you didn't use. So that's really what I think their angle has been, really to try to say that we are approaching politics from a completely different angle. Whether it's positive or negative, remains to be seen, and it's really up to the people. But it's really something different than anything else that we've seen, at least in the last many, many years in India. So very briefly, I would request Chintan to make a comment on whether it is disruptive or not. Before we go there, I just want to clarify about Ford Foundation, what you just mentioned. That first of all, it has been very clearly, with substantial evidence submitted with the Delhi High Court that whatever Ford Foundation has donated, it is to a private NGO. None of the money or not even a penny has been used for the political activation or political movement. That has been... Okay, Chintan, I know we don't have enough time to exactly go through everything. But the reason is when you are claiming that you want to bring honesty in the politics and you want to sort of clean the whole system with your jadu, then if there is mal on your own... Those allegations are absolutely baseless. In fact, Delhi High Court has made an observation that Congress and BJP have received funds in last few years. They have received funds from Dow Chemicals, Vedanta. So, in fact, they asked, both the parties to come up with the explanation that why have you received funds from the foreign companies. So, and we are nowhere in the picture. Not even a penny, not even a paisa has been collected from foreign company or used for any political movement. Now, since we have very little time, I won't ask BJP and Congress to respond to this. But Mani, based on the general reading of news that is coming these days, do you agree with what Chintan is saying about Aam Aadmi Party's fund-related situation? The fund-related situation, I'm not really an expert on the ins and outs of all of that. But like I said, I think really their main focus has been just trying to shine a light on how different they are from the other parties. Yep. So that's really been their calling card. So there are many Ds, desperation, determination, then disruptive, and now that dimension of being different has also come. And you can also join in the conversation down the line. But let me now request Dr. Rajesh Shukla ji, when we use this term desperation, because recently there was a video which was brought out by Bharatiya Janata Party, which
kind of mocked at the way Vadra, that is son-in-law of Rawat Vadra. Sonia Gandhi ji, has amassed a lot of property, wealth, whatever. But the way this was presented, Damad, Shri, it kind of doesn't match the dignified level of dialogue that one would expect at the national political scene. It's like a scene from any film, comic film type. See, देखिए कांग्रेस का जो 10 साल का शासन है इतना करप्शन कभी नहीं हुआ। ये जितनी भी CAG की रिपोर्ट हैं आप देख लीजिए, एक स्कैम थोड़ी है, स्कैम पे स्कैम है। और स्कैम ऐसा नहीं है कि उनके कुछ मंत्रियों ने किया, वो जो फर्स्ट फैमिली है वहाँ तक जाता है। रावत वड्रा के 2 साल पहले बीजेपी ने पार्लियामेंट में उठाया था क्वेश्चन। रावत वड्रा का जो अभी आ रहा है उसमें सिंपली बीजेपी ये कह रही है कि इनको जो भी इनकी संपत्ति बढ़ी कैसे, ऐसा तो नहीं उनका पहले, जैसे कि जिनको भी आइडिया हो कि रावत वड्रा का थोड़ा एक्सपोर्ट का काम था ब्रासवेयर का, इट वॉज वेरी स्मॉल कंपनी, वो इनके फादर की कंपनी थी। सडनली इनकी पेड अप कैपिटल 1 लाख है और 7 साल में फ्यू 100 करोड़ का इनकी संपत्ति हो जाती है, जो मॉडल है। आप एक लैंड खरीदते हैं, देखिए आजकल ये लोग कैसे पैसे बनाते हैं। एक ज़मीन आपने खरीदी एग्रीकल्चर लैंड को, वो एक वहाँ की भाषा में कहते हैं CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज़। फिर वो चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं कि इसका CLU कर दो, यानी उसको कमर्शियल कर दो या अपार्टमेंट, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इट इज़ ए नोन फैक्ट। आपको भी पता है दिल्ली के आसपास गुड़गांव एरिया काफ़ी डेवलप हो रहा है। रावत वड्रा जाते हैं, 3.5 एकड़ की ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पे उसको एडवांस पैसे देते हैं किसान को, जो भी है वो पैसे चेक नहीं जमा करता। उसके बाद ये DLF पे जाते हैं, DLF इनको एडवांस दे देती है। DLF इज़ द बिगेस्ट बिल्डर इन इंडिया राइट नाउ। 15-20-25 दिन के अंदर उसका CLU हो जाता है, हरियाणा गवर्नमेंट चेंज कर देती है। उस लैंड की प्राइस 7.5 की जगह 56 करोड़ हो जाती है। फिर वो DLF को ही बेच देते हैं। अब वो 56 करोड़ जो मिले उससे उन्होंने उसको जो अच्छा, मैं शुक्ला जी आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, पता है आपने पहले कहा, मैं आपकी जगह मुझे पहले एक सवाल ऐसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ये सारा मामला खुलासा करके बताएं, ऑफ कोर्स आपने बताया उसके लिए धन्यवाद, और देयर माइट बी मोर डिटेल्स, बट द वे इट इज़ प्रेजेंटेड, मतलब ये सारी बातें पहले से पता हैं, डिस्कोर्स में हैं, लेकिन जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, आप वो वीडियो देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कुछ सिंसियरिटी है, उसमें ऐसा लगता है इट्स मोर फॉर एंटरटेनमेंट और टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ थ्रिल। ये फैक्ट है, उसके अंदर फैक्ट ही दिए हैं रविशंकर प्रसाद जी ने जब प्रेस का। सर अब मैं बताता हूँ उसका वो पूरा वो जो वीडियो रिलीज किया उसमें कोई नथिंग, सर देखिए कोई किसी को डेरिगेटरी या किसी को केवल उनकी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी आप सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन लिया ना। देखिए आपकी बात जो है उसमें ये हुआ, नहीं इंटरप्ट न करिए, उसमें ये हुआ कि पूरा न डेरिगेटरी, केवल फैक्ट रखे हैं सर, फैक्ट पब्लिक को तय करने दीजिए। शुक्ला साहब आप फैक्ट बात ही नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी फैक्ट की बात नहीं करी, हमेशा झूठी बातें करी और झूठी। अच्छा, ये मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें फैक्ट्स तो दिए हैं, उन्होंने आंकड़े तो दिए हैं। वाला जो बताया है, रॉबर्ट वड्रा वाला जो इन्होंने बताया, एक अच्छी मूवी बना दी। इन्होंने ये नहीं बताया कि अदानी के बारे में क्या कहना है। नहीं, मुझे वड्रा की बात कर रहे हैं तो अदानी की बात नहीं, इसलिए बस क्योंकि देखिए जब आप बात कर रहे हैं ये पार्टी की बात, पिक्चर कौन बना रहा है? पिक्चर वही भारतीय जनता पार्टी बना रही है, तो कांग्रेस को बनानी पड़ेगी। हम पिक्चर आप बनाइए, छोटी पिक्चर थी, अदानी की तो फुल 70 mm की पिक्चर है, तो बनाइए ना। तो इसलिए, लेकिन हम लोग शराफत वाले हैं, हम कभी कांग्रेस कभी पर्सनल अटैक नहीं करती। देखिए हमने अगर देखिए मोदी जी ने अपनी वाइफ को छिपाया, अभी तक कहाँ छिपाया? अभी तक छिपाया। मोदी जी तो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं है, उन्होंने यशोदा बहन को छिपाया अभी तक। अभी इन्होंने जब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इतना खतरनाक लॉ बना दिया कि अगर आप नहीं बनाओगे आप डिस्क्वालीफाइड है। तो जो आदमी अपनी बीवी छिपा सकता है, मरवा सकता है लोगों को, तो झूठी बातें बनाना कितनी बड़ी बात है। ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं जो आपने कहा? नहीं, क्या व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, बिल्कुल अदानी को 16,000 जुने जी, लेकिन आप अपनी कुर्सी मत छोड़िए, कुर्सी मत छोड़िए। रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे पार्लियामेंट हो या पॉलिटिक्स हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मैनेज करने के लिए जैसे एक इंडिपेंडेंट आंख की जरूरत है, कैग है या लोकपाल है, वैसे प्लीज आप यहाँ रोल करिए, नहीं तो दे विल हाईजैक द होल डिबेट। ये भाजपा और कांग्रेस की आरोप लगाए में हो जाएगी। तो ये आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि जैसे डिबेट का हमारा कोई स्पेशल एजेंडा है, हमारा यही है कि डायलॉग बने, हम एक दूसरे को समझे। तो आम आदमी पार्टी इस बात को समझे, नहीं हम समझ रहे हैं। अशोक जी मेरी आंसर तो लीजिए, जैसा आपने आरोप लगाया। देखिए
अडानी ने कुछ किया तो आप उसकी इंक्वायरी बैठा लिया। 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है। अच्छा अरे सर, तो आप क्यों नहीं करते? लोकायुक्त बनना देखिए, अगर आज मोदी जी जेल में होते, अमित शाह जेल में होते, अगर लोकायुक्त बनता, गुजरात के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति होती 10 साल में, मोदी जी आज जेल में होते और अमित शाह जेल में होते, दोनों। ऐसा हमारे आरटीआई कमिश्नर नहीं बनने दिया। शुक्ला जी और जुनैद जी, शुक्ला जी पूरा आप मेरे बात आपकी बात सुनने का समय आने वाला है, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा एक विराम लेने की आवश्यकता है। पर उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तो शब्द है उससे तो बहुत सारे डायमेंशन बदल जाते हैं, पर जिस तरह से भारतीय राजनीति में डायमेंशन बदल रहे हैं उसमें क्या रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। आप भी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ें और हम आते हैं वापस राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Shri Kali Mata astrologer Pandit Mahendra Guruji, with over 35 years of experience, he can help you with the relationship, business, family, children, health and more. Pandit Ji can perform all types of pujas. Pandit Mahendra Guruji is expert at removing black magic and giving protection. Guaranteed results. Call 347-833-3915. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. क्या बात है मास्टर फिरोज, यूएसए से बहुत प्यार हो गया है आपको? Of course, वहाँ पे पता नहीं आपको कितना सारा टैलेंट है। So let's do this, guys. DID Little Masters auditions all across North America. Get ready, North America! America and Canada. Dreams are about to come true, so Dance it out! DID Little Masters USA audition. Log on to zdilse.com to submit your video or to record your audition. For local audition information, log on to aryaintl.com. वेलकम बैक, यू आर वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति की, और भारतीय राजनीति की बात करते हुए हम वहां पहुंचे जहां डेस्परेशन या डिटर्मिनेशन की बात को लेते हुए कांग्रेस के लीडर जुनैद काजी जी ने यह कहा कि मोदी तो चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं है। क्या ये व्यक्तिगत आक्षेप है? क्या ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है? यह भी एक सवाल है जिसकी तरफ डॉक्टर राजेश शुक्ला जी हमें कुछ बताने वाले हैं। पर बहुत संदर्भ ऐसे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी बौखलाई हुई है। जिस तरह के वक्तव्य कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर करते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद कांग्रेस इस बार फिर जीतने की स्थिति में नहीं होगी। बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं डॉक्टर राजेश जी से चाह रहा हूं कि आपकी अनुमति से मैं एक दर्शक से भी जुड़ लूं। हेलो ITV लाइव, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सर, जल्दी बात करें। गो अहेड सर। यस सर। यस सर। सो व्हाट्स योर नेम? Roop Kishan. Roop Kishan ji, what do you feel? Is there desperation or determination on the part of Aam Aadmi Party, Congress and BJP at this point? I think for Congress it is definitely desperation. I see. Aam Aadmi Party, they just want you to be a disturbing force. I see. And as far as your this guest, Mr. Kazi, I really feel hurt when he's talking about Narendra Modi's wife So and let's all show that. him. Let's show him. Narendra Let's show him. Modi is an Indian, and he is an Indian who is a leader of a great caliber, and he has given
up all his रूप नारायण जी का नाम he's रूप given up नारायण। all his life just for the purpose of serving his nation. Yeah. The way he talks, I really feel hurt that he's Can you talking about his wife. stay in the camera, please? सर रूप नारायण जी आप रूप किशन जी। रूप किशन जी आपको मोदी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। काजी जी सही नहीं है। काजी जी आप जो सही मानते हैं, आई एम कमिंग टू डॉक्टर शुक्ला, बट आप जो सही मानते हैं और वो जो सही मानते हैं उसमें निश्चित रूप से अंतर तो है ही है। बट बिफोर यू आंसर, आई थिंक आई आल्सो वांट टू ऐड Junaid ji, when you say what you just said, and then you look at the survey conducted by so many polls in India, so there are vast number of Indians who probably see him as a potential prime ministerial candidate or potential prime minister, I must say that. And I think when Roop Kishan ji says that he is hurt, I think you shouldn't be. I think this is a political dialogue where we are trying to understand each other. But your point is well taken, and you wanted to respond to it. Yes. देखिए जहाँ तक मैरिज में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। रीजन ये कैसे let him speak. मतलब अगर आपको आंसर देना तो आपको क्वेश्चन करिए, आंसर भी आप दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि नहीं। बात सुनेंगे ना। देखिए इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये कहा कि आपको कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर, और जो उनको जानते हैं ये नोन था कि उनकी पहले मैरिज हुई थी बाल्यकाल में, बचपन में। उसके बाद वो कभी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, ये सबको पता था। अब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नो कॉलम कभी नहीं नो लिखा। इस बार ये था कि उन्होंने कॉलम लिख दिया यस। उन्होंने कभी आपको बात छिपाई नहीं। ये तो 1 साल से प्रेस में भी चर्चा में, 2 साल से भी प्रेस में चर्चा है। वो तो अब इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहले नहीं बोला था। सुनिए, आप डिस्क्वालिफाइड कर देंगे अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। कौन सी उन्होंने बात छिपाई? दूसरी बात ये कि अगर वो जो था तो उनकी वाइफ सर अगर अमेरिका तो वो डिस्क्वालिफाइड हो चुके होते। जुनैद जी महाराज, जुनैद जी let him say। अगर बात छिपाई होती, गलत भरा होता, गलत कभी नहीं भरा, तो कैसे डिस्क्वालीफाई होते? दूसरी बात आपने अडानी वाली बात कही। आपकी 10 साल से सरकार है। आज मैंने सुबह अडानी का वो इंटरव्यू देख रहा था। अडानी को पहली बार जमीन तो दी चिमन भाई पटेल की सरकार ने, जिसमें आप भी शामिल थे। तो उस समय आप लोगों ने क्यों उसको जमीन दी, वो कच्छ वाली? आज अडानी ने खुद बोला कि मुझे पहली जो जमीन दी है 93 में चिमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर बीजेपी थी। इसके अलावा एक बार उसमें इंक्वायरी बैठा लिए ना, आप करिए उसको जो भी कैन यू डिनाई कि रॉबर्ट वड्रा की जो प्रैक्टिस है वो सही है? मतलब इस पे हाँ या ना जवाब दीजिए। इस पे गलत नहीं, आदमी प्रोग्रेस कर रहा है। Let's move on with few of our viewers also. Hello ITV Live. हेलो जी नमस्कार। जी 1 मिनट। जी बोलें। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये जो कह रहे हैं लोकयुक्त नहीं है, लोकयुक्त तो है गुजरात के अंदर। नहीं है सर, 2013 से है। कब से है? 2013 में आया ना लोकयुक्त। धीरे धीरे बोले, आवाज जाती है, माइक ठीक है। दूसरी बात ये है जी, तो चले जाते फिर ये जो झूठ बोला सोनिया गांधी ने कहा मैं हार्वर्ड से ग्रेजुएट हूँ, वो झूठा था या मोदी झूठा है? पहले इसका फैसला तो बताएंगे। सर मोदी तो क्वालिफाइड झूठे हैं। वो कहता है कि मैं हार्वर्ड से ग्रेजुएट हूँ, सोनिया जी ने, इनकी नेता ने। तो वो कभी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट भी नहीं रही सर। वो नहीं, वो कैंडिडेट जब पहले इलेक्शन लड़ा उन्होंने भरा दिया, झूठ बोला हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन वो अभी तक मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं सुनी नहीं है सर। तो आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद है। और सच के और झूठ के फैसले को हम फिलहाल स्थगित रखते हुए अब बढ़ते हैं अपने अगले दर्शक की तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी। हेलो ITV लाइव। यस गो अहेड। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ तो आप बताएं कि डेस्परेशन है या डिटर्मिनेशन है? आप पहले बात करें कांग्रेस की। हाँ, मैं वो काजी साहब से पूछना चाहता हूँ। जी पूछें। वो काजी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी 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 पूछिए। अगर वाड्रा क्लीन है तो वो क्यों नहीं दिखा सके? वो ये देखो मेरी किताब क्लीन है, आके पढ़ के जाओ। प्रियंका क्यों नहीं बोलती? राहुल क्यों नहीं बोलता? सोनिया क्यों नहीं बोलती? क्या चीज नहीं बोलती? वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखा देते? अरे तो जब दिल चाहे तब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी पूछेगी तो जरूर बताएंगे, सारे डॉक्यूमेंट बताएंगे जब कोई एजेंसी पूछेगी। तो
तो आपका धन्यवाद करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहता हूं चिंतन की तरफ। तो चिंतन, ये वाला जो मसला है खास करके, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो वड्रा जी का मामला है? और इसमें मैं आपकी तरफ ये भी बात जोड़ता चलूं कि काफ़ी समय हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मसले पर चर्चा नहीं हुई, जबकि वो पहले जब चुनाव दिल्ली के हो रहे थे तो वो इन सब बातों के बारे में चर्चा करते थे। अब वो सिर्फ मोदी जी के खिलाफ अधिक बोलते सुनाई देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल द फोकस इज डेफिनेटली ऑन द करप्ट लीडर्स, करप्ट कॉरपोरेट्स। तो इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, अभी हमने दोनों के मसले उठाए हैं। बट अभी हो क्या रहा है, द एंटायर डिस्कोर्स हैज बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स थ्रोइंग सम नंबर्स इन द एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मॉडल डेवलपमेंट एक्विजिशन कुछ भी हो रहा है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये उनके ऊपर बोलेंगे, वो उनके ऊपर बोलेंगे, आखिर द इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? They keep on telling us go to court. कोर्ट थोड़ी इन्वेस्टिगेट करती है। There has to be an independent investigative body, जो ये दोनों में, ना इनको सेंटर में चाहिए ना इनको स्टेट में चाहिए। तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? पीआईएल पे हम फाइल करते जाते हैं। दैट इज नॉट इवन अ फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी which is fairly probing any accusation, any allegation। तो फिर कैसे ये सब प्रूव होगा? ये खाली एक डिस्कोर्स लाने के लिए एक एलिगेशन, ये लोग सुबह में सगुफा छोड़ेंगे, एक बीजेपी वाले छोड़ेंगे, पब्लिक लग गई काम में। तो अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? वी आर, सी, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा सबसे बड़ा मूवमेंट, द बिगेस्ट स्ट्रगल इज टू गिव एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। नहीं, अभी क्या कर रही है? इलेक्शन के दिनों में क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? हम लोगों को बता रहे हैं कि जब तक आप नहीं जागोगे, आप पावरफुल नहीं बनोगे। अभी हुआ क्या है डेमोक्रेसी में, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन जिस तरह डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिशियन है, जो भी वो एम्प्लॉई है और हम लोग एम्प्लॉयर, पब्लिक एम्प्लॉयर है। हो क्या गया है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से रीच हो गया है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से पावरफुल हो गया है। संक्षेप में इनकी बात देखिए, आम आदमी पार्टी की आप शुरू से देखिए, जो इन्होंने कहा उसका अपोजिट किया। पहले केजरीवाल ने कहा कि मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लड़ा। फिर उसने बोला कि मुझे इलेक्शन पहले तो लड़ना ही नहीं है। फिर उन्होंने पार्टी बना ली। खैर वो बात की बात, सरकार 49 डे चलाई। बिजली पानी के बिल आ देगी, उसमें बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा। 1 अप्रैल से पुराने बिल फिर लागू हो गए, क्योंकि उसका कोई पैसे का प्रोविजन नहीं रखा। शायद इनको पता नहीं था, या इनको ये था कि पब्लिक को हुडविंग करना है। उसके बाद इन्होंने सरकार भी छोड़ दी, और केवल इनको ये किसी तरीके से लाइमलाइट रहना डिसरप्टिव फोर्स है। दूसरा, अब इन्होंने ये बोला, अरे भाई आप कोर्ट में जाइए, जैसे कि उसमें कोर्ट कैन फोर्स यू टू इन्वेस्टिगेट। किसको लेकिन करेगा कौन? चिंतन की बात में कौन करेगा? सीबीआई करेगी, सीबीआई करेगी। एक्चुअली नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है। आप मुझे इस बात की अनुमति दें कि आम आदमी पार्टी का अपना एक रोल है भारतीय राजनीति में अभी, पर मुख्य रोल मुझे लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अधिक प्रभावी जिस तरह से आ रहा है। तो मणि की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ पहले ये बात लेके कि जब इस तरह के वक्तव्य आते हैं, व्हेन यू हियर दीज काइंड ऑफ कमेंट्स दैट a very senior leader, a part of Congress, says that all those who are supporting BJP should be thrown into the sea. Or earlier someone said that Modi should be thrown into the sea. What does it? I heard it. Not the Modi. I heard it. Salman Khurshid. मोदी को सपोर्ट करने वाले नहीं, ये तो लेटेस्ट है सर, वो तो बहुत पुरानी, थोड़ी पुरानी बात होगी। अच्छा, but so what do you make out of it as far as Congress standing is concerned at this point? No, I think the Congress is definitely very desperate. I mean, I think the writing is on the wall. They know that they're not going to get back into power by any means. The electoral math is completely against them in all ways. So they are it's pretty obvious they're not going to come back to power. And I think that has given them a certain level of desperation. So they're just trying to throw all kinds of accusation left, right, and center. The other thing to keep in mind is also we live in a more hypersensitized media these days. This is probably one of the first times that social media and Twitter has become a big thing in Indian elections. So everybody feels like they have to say something to respond to each other's allegations. So the level of discourse has really come down to a very low level. And a lot of the statements that the senior leaders are making are really quite laughable sometimes. And I think, Mani, whatever the leaders who is making the statement like that, that's their personal statement. How can you say that? That is their personal statement. कि अगर वो उसमें डाल दें और कोई लीडर आया वो बोले कि भैया इंडिया के जो कांग्रेस को वोट दें उनको पाकिस्तान भेज दो, एक साहब ने बोला जो मोदी को वोट दो उनको समुंदर में डाल दो, ये आदमी के पर्सनल स्टेटमेंट है, वो डेस्परेशन में भी हो सकते हैं। आई एग्री विद दैट।
लेकिन जहां तक की बात आती है भारतीय जनता पार्टी अभी जो है मुझे आपको इंटरव्यू करने की बहुत जरूरत इसलिए है बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। पार्टी कोई ऐसी तो एंटिटी है नहीं कि अचानक ही बोले। वो इसीलिए बोला ना कि डेस्परेशन, मतलब कितना ज्यादा एक आदमी के खिलाफ बात हो सकती है कि भाई मतलब कितना एक दिल में गुस्सा भरा हुआ उस आदमी के लिए, तो आदमी अपने इंडिविजुअल गुस्से को निकालने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे सकता है। अशोक जी, ये दोनों पार्टी की हो रही है ऐसी एलिगेशन, एक भी पार्टी सॉरी नहीं फॉर अपोलोजाइज नहीं करती है कि हमारे नेता ने ऐसा घटिया बयान दिया है। ओके, एंड इट इज सो पैथेटिक दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज कम टू दिस लेवल। आप बहुत नहीं, I'm talking about Congress and BJP. I'm talking about the leader and speakers of Congress and BJP in India. इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात सुनिए अब, देखिए जिस स्टेटमेंट का बार बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वो गिरिराज सिंह ने दिया जो वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार में, तो वो अपने पॉलिटिकल आप बात सुना करिए। उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, जो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कि ऐसे स्टेटमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इससे जो हमारे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसने उससे डिसोन किया कि ये उनका व्यक्ति है, तो ठीक है उन्होंने बोल दिया, तो वो पर पार्टी ने तुरंत कहा, हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी ने कहा कि उससे हमारा कोई लेना नहीं। पार्टी ने अपोलोजाइज किया है, ना ही वो स्पीकर ने अपोलोजाइज किया है। लेना देना नहीं है, दैट्स नॉट कैंडिडेट कहता है। अरे प्राइम मिनिस्टर कहता है, लेकिन पार्टी नहीं बोल रही है। दे हैव नॉट ऑफिशियली अपोलोजाइज, यू नो, वो कोई कुछ भी बोल के, यू नो। लेट अस हियर व्हाट आवर व्यूअर्स वांट टू से। हेलो ITV लाइव जी, नमस्कार। आपका फोन उठ गया है, आप लाइव शो में हैं। हेलो ITV लाइव। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हेलो जी अशोक जी। हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते अशोक जी। आपको मेरे को अपने को एक शॉर्ट में 1 मिनट में 3 बात करने का था। हाँ, करिए। अदानी का एज अभी 51 है, वो 20 या 31 ईयर से रियल एस्टेट का बिजनेस में है। वो नरेंद्र मोदी के टाइम ने, चिमन भाई पटेल के टाइम ने, वो शुक्ला जी ने बताया तभी जी। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कोई भी मर्डर नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट ने और कितना सीट बनाया, सब में उसको इनोसेंट किया है, तो उसको मर्डर नहीं बोल सकता है। और आज का पेपर में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में किधर कुछ ने भेजा कि कांग्रेस का किसने ईमेल भेजा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि किसको अटैक, कांग्रेस का किसको भी अटैक नहीं करने का। वो पहले वडेरा के पीछे पड़ा था, अभी क्यों चुप हो गए केजरीवाल, क्योंकि कांग्रेस का दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये आपकी बात है, धन्यवाद है आपको। और मुझे लगता है कि एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इन्हीं की पार्टी के अभी आपको पता है बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक पूरा वीडियो सर्कुलेशन में यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने ये कहा कि पहले इनका यूट्यूब तो आप लोग बनवा देते हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग, हमारी पार्टी थोड़ी, इन्हीं की पार्टी, आपकी पार्टी झूठी बनाती है। सुनिए, वो आप कैसे कह सकते हैं? इनकी पार्टी के लोगों ने जो 5-6 लोग छोड़ गए, उसमें एक अश्विन उपाध्याय है, कई लोग जो इनकी पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बोला है कि पहले केजरीवाल का था कि हम लोग 70-80 सीटों में चुनाव लेंगे, ऐसा इनका प्लान था। उनका इनकी पार्टी में केवल 4 लोग तय करते हैं, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और वो योगेंद्र यादव और एक और वो आपको कैसे पता हमारी पार्टी में कौन डिसाइड कर रहा है? लोग बता रहे हैं, हमें क्या पता? हम जो आप ही के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग बता रहे हैं, मुझे क्या मालूम? अभी नहीं है वो मेंबर। नहीं सुनिए, तो वो थे नॉट इन पार्टी एनीमोर, ही कैन से एनीथिंग दे वांट। नहीं, कुर्सी घुमाए मत, वहीं रखो। थे भारतीय जनता पार्टी, कुर्सी संभाल के रखो, वरना कुर्सी हमारे पास निकल जाएगी। अच्छा सुनिए, कुर्सी आप संभाल के रखिए। फिर उनके बाद उसने उनका ये इनके ऊपर आरोप है कि केजरीवाल और योगेंद्र यादव एक होटल में मिलने गए, अमन होटल दिल्ली में, विच इज ओन्ड बाय रॉबर्ट बद्रा। फ्रंट पर DLF है, पर इट इज ओन्ड बाय रॉबर्ट बद्रा। सुनिए ना कि उसमें उन्होंने ये उनकी कुछ डील हुई कांग्रेस के लोगों ने, और उन्होंने तुरंत आके अनाउंस किया हम 400 कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इनके पास आदमी कहीं है नहीं, पर 400, क्योंकि इनका कांग्रेस का इसमें पैक्ट ये किसी तरीके से कुछ वोट काटो और किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोको, बीजेपी को रोको। शुक्ला साहब ने जो बोला, मैं आपको बता दूं, हमारे पास आदमी नहीं है। करप्शन भूल गए, अब केवल कम्युनिज्म, हमारे पास आदमी नहीं है। हमारे पास कम्युनल बहुत बड़ा एजेंडा, हमारे करप्शन बात ही खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल हमारे पास आदमी नहीं है। ये जो उन्होंने बोला ना, ये आदमियों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। कहां से आए? जनता में से लोग खड़े हुए। हम किसी को जाके नहीं बोलते कि आओ हमारे पास, जनता को खुद लाना है चेंज। दे वांट टू फाइट इलेक्शन, उनका दे वांट टू रिप्रेजेंट, दे वांट पीपल टू रिप्रेजेंट देम। तो ये बिल्कुल गलत और बेसलेस। टिकट वापस किया है,
हाँ तो उसमें क्या है? इनकी किसी और पार्टी ने टिकट, इनके अरे नई पार्टी है, लोगों को संगठन नहीं है, पैसे नहीं है, तो नहीं लड़ना है। सर भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी टिकट वापस हेलो आईटी जी बोले। हेलो अशोक जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। वो गाजी साहब को और मणि भाई को हमारा सवाल है कि ओटावियो क्वाट्रोची को सिंगापुर से भगा दिया, इंडिया से भगा दिया, लास्टली अर्जेंटीना से भगा दिया, इसमें आपका क्या जवाब है जरा बताइए। वो मेन कल्प्रिट था ओटावियो क्वाट्रोची, मेन कल्प्रिट जो गांधी का रिलेटिव था। तो मुझे लगता है कि मणि विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। नहीं सर, आपकी सर मेरी बात सुनिए सर, आप अपनी इंफॉर्मेशन सही लेके आइए, जाने कहाँ से लेके आते हैं आप, जरा अपडेट इंफॉर्मेशन लेके आइए आप। Okay, so we move on. Probably that was a little older reference, and maybe they don't have updates on that one exactly. But I now want to go to Mani with this reference, wherein we hear lots of comments from Priyanka Gandhi Vadra in newspapers, and whatever she says is seen as the voice of Congress now. Suddenly, she has become the central figure as far as Congress stand is concerned, and the kind of statements once she stood in support of her husband, which was kind of a turning point for Congress, because earlier many leaders, Junaidji, you must have also observed, were referring to Vadra as an individual, and now they have started looking at him as sort of a part of the family. As when I say family, now it is Congress family that I'm saying. So now they are speaking for him. But Mani, how do you see this change is it a strategic move on the part of Congress? It might be a little bit strategic, just because, promoting Rahul Gandhi as leader has not really gone very far for a variety of reasons. He is not proven to be a dynamic leader. People have been making fun of his various public performances. And I think in general there has always been a sneaking suspicion that Priyanka is probably the brighter of the two Gandhi kids, if we can call it that way. And so this is maybe a way for them to, without much to lose, bring her out into the open, because at this point she's not the public face. It's difficult to attack her because she's not really been campaigning as much as maybe Rahul or Sonia has been. So I think it's to that in that fashion, it's a little bit of a strategy just to make sure that, and she can also come across as supporting her husband. No, I don't think Mani. This is देखिए हिंदुस्तान की ये एक सभ्यता है कि हर नारी अपने पति के लिए खड़ी होती है और स्टैंड होकर अपने बात करती है। कानून जो होते हैं तो उन्होंने अपने हस्बैंड के उसके लिए बोला, सपोर्ट के लिए, कोई गलत बात नहीं बोली, और जो बात बोली वो कांग्रेस के लिए बोली, कोई इसमें स्ट्रेटजी नहीं थी। अपने भाई इलेक्शन लड़ना है उसके सपोर्ट में बोली। प्रियंका गांधी ने पब्लिकली बोला है कि हर इंटरेस्ट इज ओनली इन अमेठी एंड रायबरेली, शी इज नॉट गोइंग टू कैंपेन एनीवेयर एल्स अदर देन अमेठी एंड रायबरेली। तो प्रियंका गांधी हैज नथिंग टू डू विद इंडियन पॉलिटिक्स, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। शी इज इंटरेस्टेड इन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पीरियड। So whatever she does, it's immaterial for Indian politics. I'll just add to what Chintan said, and then we'll have Junaidji respond to it. Of course, she has restricted her presence to Amethi now. She is not even going to Raebareli. No, and she has made this comment a couple of times that if she wants to contest, her brother is not going to oppose, her mother is not going to oppose, her husband is not going to oppose. Definitely right. Now, is it all a family affair? I mean, there is no accountability to the public or to the party. How do you respond to this kind of impression which people have? 20 साल से चल रहा है ये प्रियंका। Is it like coming soon movie? 20 साल से चल रहा है। It's not the coming soon movie. She is capable. People like her. She was working with her grandmother, with her father, with her mother. Amethi में, Raebareli में, every place she goes, and she was telling about Amethi that people love her to the death. लेकिन किया क्या है? What work she has done except giving public speech? काम क्या किया है? Show me one organization she leads. Show me one activity she has done. But if she becomes a leader, how do you expect to fight election just because you are Gandhi? Chintan, let me just ask a question to Junaidji. If she's not a leader, then what business she has to make statement on behalf of Congress party
I mean, she's not. Sir, a leader. she belongs to Congress Party. Her father, her mother, her grandmother, everybody. Her blood is Congress, so she have all the rights. Indian blood. But Indian blood. except taking undue advantage लेने के वाला उन्होंने किया क्या है? She wants to come into politics, represent youth. What has she done? कुछ तो काम किया होना चाहिए before you enter politics. Just because on your surname you cannot enter politics. Her surname is not Gandhi, by the way. I mean, still people know her as Gandhi. Nobody cares about Vadra. वो गांधी शब्द को भुना रहे हैं ना, इससे जितना उसको निचोड़ ले भुना ले उतना अच्छा, क्योंकि और कोई क्वालिफिकेशन तो है। सर, गांधी ने जो कंट्री को दिया है, ये तो आप वो गांधी ने दिया है, ये गांधी ने नहीं। प्लीज महात्मा गांधी ने उससे महात्मा गांधी को प्लीज कंपेयर मत कीजिए। गांधी ने हमको एक समय में हम में से एक जना बोले तो आवाज साफ-साफ जाती है। Let's have what we hear from our viewers. अच्छा, उसका let me add something to that. आप फोन उठ गया है, आप जल्दी बोलें। जी हाँ जी, नमस्कार। सिर्फ क्या है कि इस वक्त दो हैं जी, राहुल जी और मोदी है। इस वक्त राहुल और मोदी दो हैं। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। अच्छा जी, कहने का ये मतलब है जी कि राहुल और मोदी जो है ना, जी, राहुल और मोदी दो हैं कैंडिडेट। अब इसमें कंपेयर कीजिए कि इसमें बेटर कौन है, मोदी बेटर है या राहुल बेटर है। प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए दो कैंडिडेट हैं, तीसरा जो है वो उनका कोई डिसाइड नहीं है, थर्ड पार्टी वालों का। अब मोदी का राहुल में कंपेयर कीजिए, आप किसको ज्यादा, किसे पूछो कौन ज्यादा बेटर आदमी है। अगर आप जुनैद जी से पूछेंगे तो राहुल बेटर है, अगर आप राजेश जी से पूछेंगे तो मोदी जी बेटर है। अगर जनरल पब्लिक बताएगी ना, जी जी, पब्लिक का फैसला करेगी, पब्लिक फैसला करेगी कौन अच्छा है। जी, इलेक्शन के बाद में पता चलेगा साहब, पब्लिक के फैसले की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि कोई बौखलाए हुए से लग रहे हैं पार्टी वाले? मतलब है कि पॉपुलरिटी, मोदी की पॉपुलरिटी इतनी हो चुकी है, मोदी की पॉपुलरिटी ने सबको बौखला दिया है। वो झूठी पॉपुलैरिटी हो गई ना सर, झूठी पब्लिसिटी। सुनिए आप, झूठी पब्लिसिटी ज्यादा हो गई और इतना झूठ बोल दिया गया कि सच, इतना सच लगने लगा, इतना झूठ बोल दिया कि हर आदमी को सच लगने लगा। वो नहीं तो आपका धन्यवाद है और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आपकी तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ राजेश जी, एक सवाल लेकर। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ इस तरह के वक्तव्य आते रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि क्या संतुलन ठीक बना हुआ है या कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे बाबा रामदेव जी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलते हुए कहा, जिस तरह से राहुल दलित पिकनिक और हनीमून मनाने जाते हैं, हनीमून जैसे शब्द आपने वो वक्तव्य सुना होगा सर। वो तो मुझे आप वो तो मैं जवाब देना चाहूंगा पहले उनको, आपके लिए सवाल ही नहीं है अभी तक वो जवाब। मुझे वो उसके बाद आपको क्लेरिफाई कर दूं कि बाबा रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, ना उनके बिहार पर उनका बोलने का अधिकार नहीं। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। उन्होंने ये आप ही अभी कह रहे थे व्यक्तिगत, अगर आपके हक में बात कर रहा वो आपकी पार्टी बाकायदा मुहिम चलाई थी नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाने के लिए। मतलब वो उसे डिनाई नहीं करता, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बोले ना, देखिए आप वापस आ गए साहब। नहीं, ये बात वाली कर दिया। पार्टी का मेंबर होना, पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होना और उनको सपोर्ट करना दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि सपोर्ट कोई भी किसी को कर सकता है, पर वो ना पार्टी की तरफ से अथराइज है पार्टी बयान बोलने के लिए। अच्छी बात है पार्टी की है, वो मान लेंगे कि हमारी नहीं, पर उन्होंने जो एक बात हुई, उन्होंने जब ये कहा तो उसी अर्नब गोस्वामी वाले प्रोग्राम में उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। ये आपने पढ़ा होगा उनको। अब वो खुद अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू सुनिए, बात सुनिए। और अर्नब गोस्वामी वाले इंटरव्यू पे उन्होंने ये भी थे, बाबा रामदेव थे, उन्होंने उसने कहा गोस्वामी ने कि आप अपने शब्द वापस ले दो, उन्होंने शब्द वापस ले लिए। शुक्ला साहब, बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया, अब वो चैप्टर खत्म, जब चैप्टर खत्म नहीं, वो जेल जाने वाले, फिर क्या प्रॉब्लम? बाबा रामदेव, कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है। वो देखिए, इशू बात नहीं कर रहे हैं कि आप राजीव गांधी की क्वालिफिकेशन कंपेयर करिए, राजीव गांधी कैरियर क्या कंपेयर करिए, आपने किया क्या 10 साल में, पूरा कंट्री को तबाह कर दिया, अर्थव्यवस्था कैसे करेंगे, इशू बात नहीं कर रहे हैं। किस पे ले जाएंगे? ये छोटे छोटे इशू पे। अरे इस पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि इनकी 3 डिजिट में सीटें नहीं मिलने वाली हैं। वो तो हम ले आएंगे सर, वो नहीं आप लाएंगे तो कहीं भी कोई और इशू मिल जाए। मैं आप दोनों को मई के 16 तारीख के बाद में फिर यहाँ आकर नहीं, लेकिन सर मैं बाबा रामदेव को बता दूं, बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के फुल फ्लैश नेता है, हमेशा से रहे हैं। और आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई या बुराई जो भी है, सुनिए आप बाबा रामदेव जाने वाले जेल,
तो आप लिख लीजिए डेट, वो तुरंत जेल जाने वाले कौन सी तारीख को? इलेक्शन से पहले इलेक्शन, क्योंकि इनके ऊपर SC/ST एक्ट के अंदर ये जाने वाले, इन्होंने दलितों को बुरा बोला, जो तो कोर्ट तय करेगा ना, वो तो कोर्ट तय। देखिए इन्होंने जनता के दिलों को तकलीफ दी, तो ठीक कोर्ट पर देखिए अशोक जी, ये दोनों ने मिलकर क्या किया है, काम की बात नहीं करेगा। एक स्टेटमेंट छोड़ दो, पब्लिक बिजी हो जाएगी, मीडिया बिजी हो जाएगी। दिस इज यू नो ये बात नहीं such a pathetic situation। लाखों करोड़ का कर दिया, अर्थव्यवस्था की ऐसी कम तैसी कर दी। सर पहले इंडिया और चाइना को एक साथ कंपेयर किया जा रहा था, आज इंडिया कोई नाम लेवा नहीं है दुनिया के। मुझे एक बात बता दीजिए, एक योगा गुरु, एक योगा करने वाला 1100 करोड़ का मालिक कैसे हो सकता है? आपकी दिल्ली में 11,000 करोड़, सॉरी 11,000 करोड़, 11,000 करने वाला 11,000 करोड़, 11,000 1100 करोड़ पर देखिए, उत्तराखंड में आपकी सरकार है जहां उनका पतंजलि आश्रम है, दिल्ली में आपकी सरकार है, उठा के बंद करो। आपकी आपको ऐसा कहना आवश्यक नहीं है कि बंद करो, आप जांच करेंगे, और जांच हुई है कई बार। वो बहुत सारे बिजनेस है उनके पर, उस पर नहीं जाते हुए हम हमारे एक दर्शक की जांच करो, दोनों क्या प्रॉब्लम? आप कुछ बोले जल्दी जी। हाँ जी, go ahead. What's your name, sir? Patel? Yes, Mr. Patel. How do you feel in terms of Indian politics? Desperation or determination? Which party? Well, I was just watching the new TV, and those guys is talking like, what's his Modi did and what's Sonia did it. But what they're going to do, like when they're coming up in the new year? Yeah, that should be the people. Correct. That should be the. So, what do you see? Which party has opened the area of their vision in terms of what? I guess as Modi has like an open view. They just talking. Modi didn't didn't tell him like he has a wife. Who cares about what he does for the people? That's the most important, isn't it? I don't think Nobody so. would agree with that. Yeah, but what do you see? Has there been some clarity on the part of Modi and Bharatiya Janata Party in terms of their vision? I think they both is bouncing each other. That's true. That's absolutely true. There is no opposition. No, अरुण शौरी जी ने इंटरव्यू में कहा है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, इंडिया में इट्स अ मिथ, देयर इज नो अपोजिशन पार्टी। इंडियन पॉलिटिक्स में अपोजिशन पार्टी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इलेक्शंस आर फॉर्मेलिटी, खत्म होने के बाद दोनों भाई साथ मिलकर खाते हैं। सर देखिए, मेरी बात सुनिए पटेल साहब, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने जो किया है वो जनता के सामने सिर्फ झूठ बोला, गलत बातें करी, और आप ये देखिए अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिली जो उन्होंने गुजरात में किया। लोकायुक्त लेके नहीं आए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं, लोकपाल बिल, RTI, फूड बिल, महिलाओं के मनरेगा, मतलब यू नेम इट, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जितना काम कांग्रेस ने किया है वो दूसरी पार्टियों सोच भी नहीं सकती। So Junaid ji, I appreciate your comment, and Mr. Patel, before we thank you, so who do you feel is more determined amongst BJP, Congress and Aam Aadmi Party at this point? I think BJP. So I appreciate that response, and we'll move on because we just have a minute or two left for our show to reach its concluding side, and I want Mani's voice now back on the front. So in terms of future for India, the way you have heard different views, who do you see is the most promising, call it party at this point, which is? Well, that's a very difficult question to answer, because if you look at the level of discourse, it's very depressing. You don't really feel very confident about how things are going to go forward. But, the reality looks like it's going to be the BJP that is going to come to power. And it's going to be very crucial to see how Modi governs once he gets some kind of a mandate. I suspect he's still going to need help from other people to cobble together a majority. And once he does that, whether it's going to be, I don't know, Mayawati or Jayalalitha or Mamta, he's going to need some of the help. And then how does he put together a coalition and then manage to move the country forward and heal everybody is going to be a big issue, because it's been a very divisive campaign. I want to raise an important question. Junaid ji and Rajesh ji,
this is something which is going on for 6 weeks in India, and this is something which involves 1.2 billion people at this 1.2 point, billion. and more than 100 million people are some of them are already have cast their vote, and others are going to do that. So it's a great occasion. It's a festive season of a kind, and yet this is the most moving period for India. Looks like it's a crucial election. So we look forward to the way things unfold. And at this point, I know all my panelists have much more to contribute, but the time tells us that I thank V.S. Mani, Junaid Qazi ji, Dr. Rajesh Shukla ji, and Chintan for joining us. And most important, thanks to all of you for being with us. Do join us tomorrow. This is Ashok Vyas. Thank you. Shri Kali Mata astrologer Pandit Mahendra Guruji, with over 35 years of experience, he can help you with relationship, business, family,